السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی دروس اللغة العربية کا جو پہلا والیوم ہے اس کے لیکچر نمبر 7 میں لیسن نمبر 4 کے دوسرے پارٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں، جس میں شیخ کہتے ہیں In this part we learn two more prepositions, min meaning from and ila meaning to. کہتے ہیں کہ اس لیسن کے دوسرے پارٹ میں ہم حروف الجر جو ہے، جس میں سے ہم نے پہلے پارٹ میں فی اور علا دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ اسی طرح دو اور حرف ہے من اور الا، یہ بھی حروف الجر میں سے ہے، یعنی ایسے حروف جو ضمہ سے نون کو کسرہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ من کا مطلب ہے فرام یعنی سے، الا کا مطلب ہے ٹو یعنی تک۔ We also learn two more pronouns, انا اینڈ انت۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا پروناؤن جو ہے وہ ہم نے دو دیکھے تھے پہلے پارٹ میں، ایک تو ہے ہوا جس کا مطلب ہے ہی یا اٹ، اور ہی ہے جس کا مطلب ہے شی یا اٹ۔ اسی طرح ایک اور پروناؤن ہے انا، انا کا مطلب ہے آئی، انت، انت کا مطلب ہے یو۔ کہتے ہیں انا آئی از بوتھ فار میسکولائن اینڈ فیمینائن۔ آئی جو پروناؤن ہے انا، یہ دونوں مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی سیم ہے مگر سنگولر، اس لیے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر آئی، جیسے انا محمد، آئی ایم محمد، انا آمینۃ، آئی ایم آمینہ۔ پھر کہتے ہیں بٹ انت، انت جو ہے انت، یو، یہ یو جو یہاں پر ہے انت از اونلی فار میسکولائن سنگولر، یہ میسکولائن سنگولر کے لیے ہے اور سیکنڈ پرسن کے لیے ہے۔ انا جو ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہے، فرسٹ پرسن یعنی بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن یعنی جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور ہوا اور ہی جو ہے یہ دونوں تھرڈ پرسن کے لیے ہے، یعنی جو ایبسنٹ ہے، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو۔ اس لیے ہم ہوا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہی، ہیا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں شی، آئی، آنا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آئی، اور انتا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یو۔ یو ول لرن دی فیمینائن پلورل فارمز لیٹر آن۔ فیمینائن اور پلورل فارم جو ہے، باقی جو پروناؤن ہیں اور پلورل فارم میں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے۔ البتہ انتا جو ہے، اگر ہمیں یو فیمینائن سنگولر کے لیے کہنا ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہوتی ہے، تا پہ ہم نیچے کسرہ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں انتی، انتا جو ہے۔ اسی کے طرح ایک اور ہوتا ہے انتی، یہ فیمینائن سنگولر کے لیے ہوتا ہے، فیمینائن سنگولر کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے پروناؤنس دیکھے نا، ان پروناؤنس کو ہم کہتے ہیں الضمیر المنفصل۔ المنفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچڈ، یعنی یہ الگ کلام میں آ سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یو کین بگن اے سینٹینس ود اٹ، یہ ضمائر ایسے کہ ان کو ہم کلام میں الگ بلا کسی ورڈ کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھ سکتے ہیں اور اس سے کلام کی شروعات کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا ہوا فی الغرفۃ، ہیا فی المطبخ، جیسے ہم نے اس لیسن کے پہلے پارٹ میں دیکھا تھا۔ ان کو ہم کہتے ہیں الضمیر المنفصل، یعنی یہ ایسے پروناؤنس ہیں جو ڈیٹیچڈ آتے ہیں، کسی ورڈ کے ساتھ نہیں جڑتے، الگ ہم ان کو، کیونکہ ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ کچھ پروناؤنس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناؤن یا ورب کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، وہ الگ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہوتے ہیں، اور یہ سب پروناؤن جو ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ نکرہ نہیں ہوتے، یہ بائی نیچر خود بخود یہ سارے پروناؤن جیسے آئی، انا، انتی یا انت، انتی، انت کا بھی مطلب ہے یو، انتی کا بھی مطلب ہے یو، البتہ یہ جو ہے یہ میسکولائن کے لیے ہے، اور یہ جو ہے یہ فیمینائن کے لیے ہے۔ ہیا یہ فیمینائن تھرڈ پرسن کے لیے ہے، ہوا یہ میسکولائن تھرڈ پرسن کے لیے، فیمینائن تھرڈ پرسن کے لیے، اور یہ والا میسکولائن تھرڈ پرسن کے لیے۔ سنگولر کے لیے ایک کے لیے، یہ بھی سنگولر کے لیے، یہ بھی سنگولر کے لیے، یہ بھی سنگولر کے لیے، اور یہ بھی سنگولر کے لیے۔ یہ سب پروناؤن جو ہے ان میں کامن ایک چیز یہ ہے کہ یہ سنگولر پروناؤنس ہے، یہ ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ایک نمبر کے لیے، جس یعنی ہمیں ایک فرد کے لیے یہ استعمال
کر سکتے ہیں. اس لیے ضمیر جو ہوتے ہیں یہ از اے ٹائپ، یہ ایک یہ ناؤن ہی ہوتا ہے، اسم ہی ہوتا ہے، یہ ناؤن ہی ہوتا ہے. مگر جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن، یہ ناؤن کے بدلے استعمال ہوتا ہے کسی ناؤن کو ریپرزینٹ کرنے، کسی نام کو ریپرزینٹ کرنے یا کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے شارٹ فارم ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ان میں تین مطلب ہوتے ہیں، یا تو یہ غائب کے لیے ہوتے ہیں یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن کو عربک میں ہم کہتے ہیں غائب، یا تو مخاطب کے لیے ہوتے ہیں یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے، یا متکلم کے لیے یعنی اسپیکر جو ہوتے ہیں فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کا مطلب ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے، سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ ایڈریس کیا جا رہا ہے، کلام کیا جا رہا ہے. ایبسنٹ غائب یعنی تھرڈ پرسن یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چاہے پھر وہ سامنے ہی کیوں نہ، مثلا اے اور بی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک بات کرنے والا ہے یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ بی کے ساتھ بات کرے، اے اس کے سامنے ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے. اب سی بھی سائڈ میں، مگر یہ دونوں آپس میں بات کریں، ان کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ دونوں اس کے بارے میں بات کریں گے یہ غائب ہی کنسیڈر کیا جائے گا یعنی تھرڈ پرسن کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے لیے وہی پروناؤن استعمال ہوگا جو تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہوا. سو فی الحال ہم نے یہ کیا دیکھا کہ آئی کے لیے ہے آنا، چاہے پھر وہ سنگولر ہو، میسکولائن ہو یا فیمنائن. انا دونوں کے لیے ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. انت یہ فیمنائن کے لیے ہے، انت یہ میسکولائن کے لیے ہے، دونوں سنگولر اور سیکنڈ پرسن کے لیے. ہی یہ فیمنائن سنگولر تھرڈ پرسن کے لیے ہے. ہوا یہ میسکولائن تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے. اور ان سب میں ایک اور کامن چیز یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہوتے ہیں الضمیر یعنی پروناؤن، یا ٹو بی مور پریسائز یعنی ایسا ناؤن جس میں ہمیں یہ تین معنی سمجھ آتے ہیں، غائب، مخاطب اور متکلم، اور ناؤن کے بدلے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں الضمیر، اور اس کا پلورل ہے ضمائر یعنی پروناؤنز. ضمائر، ضمائر. اور خاص طور پر ان کو ہم کہتے ہیں الضمیر المنفصل یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن، کیونکہ یہ کلام میں الگ کسی ورڈ کے ساتھ جڑے بغیر آتے، اور یہ سب معرفہ ہوتے ہیں یعنی ڈیفینٹ ہوتے ہیں، یہ نکرہ نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ ان ضمائر سے ہم کسی خاص چیز کو، خاص شخص یا کسی خاص چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا پھر شیخ کہتے ہیں آگے، وی آلسو لرن ہیئر ٹو وربس. اس لیسن میں دو وربس آ گئے، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ اس پارٹ میں جو زیادہ ہے وربس نہیں آئیں گے، لیکن کہیں کہیں پہ کوئی کوئی ورب آئے گا. ذہب کا مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ، خرج کا مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ آؤٹ یا ہی لیفٹ. ٹھیک ہے، نوٹ دی فالوئنگ. مثال پہ غور کرے، آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ ذہب الی المسجد، ہی وینٹ ٹو دی ماسک. اور آپ دیکھیں گے کہ ذہب جو ہے یہ جو ورب ہے اس کے ساتھ اکثر الا ورب آتا ہے، اور خرج جو ہے اس کے ساتھ اکثر جو سوری پارٹیکل آتا ہے وہ من آتا ہے. ذہب کے ساتھ اکثر الا حرف آتا ہے، حرف جر آتا ہے، اور خرج کے بعد من جو ہے حرف جر آتا ہے. ذهب إلى المسجد یا ذهب بلال إلى المسجد. اگر ہم کہیں گے خالی ذهب إلى المسجد اس کا مطلب ہے he went to the mosque. اگر بلال کا نام ساتھ رکھیں گے ذهب کے بعد اس کا مطلب ہوگا بلال went to the mosque. So ذهب means he went, but if it is followed by a noun as the subject, the pronoun he is dropped. اگر ہم خالی ذهب لکھیں گے اس میں پھر he خود بخود چھپا ہوا ہوگا، لیکن اگر ہم ذهب کے بعد جو ڈور آف دا ایکشن ہے اس کو اس کے بعد ذکر کریں گے تو ہی کا معنی اس سے ڈراپ ہو جائے گا، پھر ہم سیدھا کہیں گے ذهب مثلا بلال یا ذهب حامد، ذهب زید. یہ جو وربس ہے عربک میں ورب کو کہتے ہیں الفعل. ہم نے دیکھا تھا کہ کلمے کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، دو تین: اسم، ناؤن، ورب اور پارٹیکل. اور ورب کو ہم عربک میں کہتے ہیں الفعل. اور عربک میں ورب تین قسموں کے ہوتے ہیں: الفعل الماضی، الفعل المضارع، الفعل الامر. فی الحال ہمیں ان ڈیٹیلز میں بالکل بھی نہیں جانا ہے، ہمیں یہاں پہ خالی ایک چیز دیکھنی ہے، وہ ہے الفعل الماضی جو ہم نے ابھی دیکھے نا وربس ذہب
या इसी तरह खरा ज। अरबिक ज़बान में क्या है कि वर्ब्स जो है वर्ब्स के बाज़ाब्ता पैटर्न्स होते हैं। एक स्केल होता है, एक मीज़ान, एक तराजू होता है जिस तराजू पर ये वर्ब्स तोले जाते हैं। या आप दूसरे अल्फाज में कहें कि एक नमूना होता है, एक वजन होता है जिस पर ये वर्ब जो है तोले जाते हैं। और वो है फा, आइन और लाम, जिसे हम कहते हैं फा आ ला। ये जो पैटर्न है फा आ ला, इस पैटर्न पे जो वर्ब फिट बैठेगा उसे हम कहते हैं अल माजी, यानी ऐसा वर्ब जो पास्ट को डिनोट करता है, यानी पास्ट में कोई एक्शन हुई है। जैसे हमने अभी देखा ज़हब, फ़अल, खरज, फ़अल। ये इस पैटर्न पे फिट बैठता है, इसलिए हम कहेंगे ये वर्ब जो है ये पास्ट के लिए, यदि पास्ट में कोई एक्शन किया गया है। और खास तौर पर ये जो पैटर्न है फ़अल, ज़हब, खरज, ये इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए। यानी जब हमें थर्ड पर्सन मुजक्कर एक इंसान के लिए कोई वर्ब लाना होगा, वो भी पास्ट में, उसके लिए पैटर्न है फ़अल, फ़अल। जैसे ज़हब, ज़हब का मतलब क्या होगा? ही वेंट। देखिए ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन। खराज, खराज, ही लेफ्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है। मसलन, और फेले माजी क्या होता है? फेले माजी ये ऐसा वर्ब होता है जो इंडिकेट करता है कि कोई हैपनिंग, कोई इवेंट, कोई एक्शन वाक़ा हुआ है उस टाइम में जो कलाम करने से पहले ख़त्म हो चुका है, यानी पास्ट में। पास्ट का मतलब होता है ऐसा ज़माना जो, मसलन मैं अभी बात करूँ, मेरी बात करने से पहले जो ज़माना गुजर चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट। और पास्ट में जो एक्शन वाक़ा होता है किसी काम करने वाले के ज़रिए से, उसे हम कहते हैं अल माजी। यानी ऐसा वर्ब जिससे हमें कोई हैपनिंग, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट, कोई काम समझ आता है उस जमाने में जो गुजर चुका है। ठीक है, जो गुजर चुका है। मसलन कोई कहेगा आईना अब्बास, अब्बास का है। अब्बास, देखिए अब्बास जो है ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और मैस्कुलाइन है। जवाब देते हैं ज़हब। देखिए फ़अल, ज़हब, ज़हब इलल मुदीरी, ही वेंट टू द टीचर। अब अगर मैं कहता मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम लिखते ऐसे, हम लिखते ज़हब अब्बासुन, नाम लेकर, इलल मुदीर, तब हम कहते हैं अब्बास वेंट टू द टीचर, हमें फिर ही की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब्बास ऑलरेडी जिक्र है। ज़हब अब्बासुन इला इलल मुदीर, अब्बास वेंट टू द हेड टीचर। सो ज़हबा और खरज जो इस लेसन में दो वर्ब्स आएंगे, वो किस, उनका क्या पैटर्न है? फा आ ला। और ये जो पैटर्न है ये बेसिक पैटर्न है, पहला पैटर्न है किसके लिए? फेले माजी के लिए। यानी ऐसा वर्ब जो कोई एक्शन हमें जिसमें समझ आता है उस जमाने में जो कलाम करने से पहले, यानी पास्ट में, माजी में हो चुका है। और ये जो पैटर्न है फा आला, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए ये इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन। देखिए अब हम लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन का, लेसन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, बा, दूसरा पार्ट कहते हैं अल बैतु मिन अल बैत। अल बैतु का क्या मतलब है? द हाउस। मिन अल बैत का क्या मतलब है? फ्रॉम द हाउस। अल मस्जिद का क्या मतलब है? द मस्जिद। इलल मस्जिद का क्या अब मतलब होगा? टू द मस्जिद। सिंपल। कहते हैं अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है, यानी अभी कन्वर्सेशन है। मुदर्रिस कहता है, टीचर कहता है, अल मुदर्रिस यानी द टीचर, मिन आइना अंत। ठीक है,
फ्रॉम आईना, ये हमने देखा आईना का मतलब है वियर, अंत का मतलब क्या है, यू। क्या मतलब वो, फ्रॉम वियर यू आर, आप कहाँ से है, आप कहाँ से है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से यानी किस जगह से। मोहम्मद के जवाब देता है टीचर को, आना मीनल याबानी। देखिए मुदरिस किससे कलाम करे, मोहम्मद के साथ, मोहम्मद मुदरिस के सामने है, और मोहम्मद ये एक इंसान है, सेकंड पर्सन है, और मैस्कुलाइन है। इसके लिए हमने देखा था कि इसके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, अंत, इसलिए कहा मिन आइना अंत। अब अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड, फर्स्ट एक सेकंड पर्सन फेमिनाइन होता तो मुदरिस क्या था, मिन आइना अंती, सिर्फ ता पे नीचे कसरा देता, दोनों का मतलब होगा यू, लेकिन फतहा अगर ता पे होगा तो मैस्कुलाइन के लिए, अगर कसरा ता पे होगा तो फेमिनाइन के लिए। मिन आइना अंत, मोहम्मद कहता है, मोहम्मद अब जो है, मोहम्मद अब बात कर रहा है खुद, अब मोहम्मद बन गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि मोहम्मद अब बात कर रहा है। और मोहम्मद जो है, मोहम्मद एक आदमी है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है क्योंकि अब वो बात कर रहे हैं, और मैस्कुलाइन है। उसके लिए हमने देखा था प्रोनाउन जो है वो है अना। अना मिनल याबान, याबान यानी जापान। कहते हैं अना मिनल याबान, आई एम फ्रॉम जापान। मुदरिस कहते हैं फिर अलमुदरिस, व एंड मिन आइन अम्मार, अम्मार कहाँ से है। मोहम्मद जवाब देता है, हुआ मिन सिनी। देखिए अब पी के प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ क्योंकि अब बात हो रही है अम्मार की मुदरिस, कलाम कर रहा है मुदरिस, मोहम्मद सेकंड पर्सन है, अम्मार के बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन है। मुदरिस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यही सेकंड पर्सन है, और मोहम्मद एट द सेम टाइम सेकंड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन भी है। सेकंड पर्सन तब जब मुदरिस उसके साथ बात करेगा, फर्स्ट पर्सन जब जब मोहम्मद जवाब देगा, जब वो बात करेगा। कह रहा है हुआ मिन सीनी, सीन यानी चाइना, असीन चाइना, सौद पर कसरा, और सौद जो है ये हुरूफ शमसी में है, इसलिए अलिफ को हम डायरेक्ट मिला रहे हैं सौद के साथ। ठीक है, असीन। अब चूंकि हमने देखा था कि नून पर, इससे इससे पहले अफसीन से पहले नून पर फतह है, हम डायरेक्ट इस नून को मिलाएंगे किसके साथ, इस सौद के साथ, मिनस सीन, हुआ मिनस सीन। असल में जो तरकीब तरकीब है ना ये ऐसे है, मिन, नून पर सुकून, अलिफ, लाम, लाम पर सुकून, फिर सौद, या और नून, सौद पर कसरा है। देखिए नून पर सुकून है, लाम पर भी सुकून है, सीन जो है ये हुरूफ शमसी है में से, इसलिए हम इसको शद्दा देंगे। ठीक है। अब अगर अलिफ लाम से पहले कोई सुकून वाला लेटर आता है, खास पर अगर वो लेटर मिन होगा, जो हमने अभी अभी हरफिजा देखा, मिन, तब अरब क्या करता है, इस सुकून के बदले यहाँ पर इसको फंसा है, क्योंकि हमने देखा था मिन असल में ऐसे, मिन, नून पर सुकून है, मीम नून जेर मिन, यानी फ्रॉम। लेकिन इस लेटर को इसके साथ मिलाने के लिए, लाम या सौद के साथ मिलाने के लिए अरब फिर क्या करते, इसके ऊपर फतह देते, बनता है मिनस्सीन, वरना असल में था मिन अस्सीन, मिन अस्सीन। फिर कहते हैं अलमुदरिस वमिन अइन हामिद, और हामिद कहाँ से है। मोहम्मद कहता है हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से है, हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से। ये यहाँ पर जापान का मैप है। फिर कहते हैं मुदरिस अलमुदरिस अइन अब्बासुन, अब्बास कहाँ पे है। मोहम्मद जवाब देता है खराजा, ही लेफ्ट। अभी हमने देखा खराजा, फ आ ला, फ आ ला, ये हमने अभी देखा, ये पैटर्न जो है ये पास्ट के लिए होता है ये वर्ब, और पास्ट भी खास तौर पर ये जो पहला पैटर्न है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ही लेफ्ट। अब अगर हम कहते हैं खराजा अब्बास, मिसाल को अब्बास को वापस रिपीट करते, फिर हम कहते हैं ही के बदले अब्बास लेफ्ट, ही हमें फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए शेख ने यहाँ पे कहा पहले ही। देखिए आइन बिलाल ज़हब इलल मस्जिद, ही वेंट टू द मॉस्क। दूसरी मिसाल दी फिर, ज़हब बिलाल इलल मस्जिद, बिलाल वेंट टू द मॉस्क। सो ज़हब मीन्स ही वेंट, बट if it is followed by a noun as a subject,
यानी डूअर ऑफ द एक्शन, द प्रोनाउन ही इज ड्रॉप्ड। फिर कहते हैं अल मुदर्रिसु अयन ज़हब, वो कहाँ पे गया, वेयर डिड ही वेंट। मोहम्मद कहते हैं ज़हब इलल मुदीरी, ही वेंट टू द हेडमास्टर। अल मुदर्रिसु, देखिए यहाँ पे सेंटेंस है ना, ज़हब इलल मुदीरी। ज़हब ये क्या है अब, ये है ना वर्ब। इससे पहले हमने देखा था कि जब सेंटेंस शुरू होगा नाउन के साथ हम उसको कहेंगे जुमला इस्मिया। अब यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ है ज़हाबा के साथ, वर्ब के साथ, हम इसको अब क्या कहेंगे, ये जुमला फ़िलिया है, ये वर्बल सेंटेंस है, ये वर्बल सेंटेंस है, जुमला फ़िलिया है। मगर इस किताब में, इस वॉल्यूम में फ़िलहाल हमें जुमला फ़िलिया पर खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अल मुदर्रिस कहते हैं वा आइन ज़हब अली, और अली कहाँ गया। मोहम्मद जवाब देते हैं ज़हब इलल मिरहाद, ही वेंट टू द टॉयलेट। अल मिरहाद टॉयलेट, ज़हब इलल मिरहाद, ही वेंट टू द टॉयलेट, ही वेंट टू द टॉयलेट। फिर कहते हैं तमारीन, एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज में कहते हैं अजिब, जवाब दो, अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवाल को मुतलिक जवाब दो। मिन आइना अंत, आप कहाँ से हो। जब मैं, अगर मुझे पूछा जा रहा है, मैं अब फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं कहूँगा मिसाल के तौर पर अना मिन कश्मीर, मैं कश्मीर से हूँ। अंत मिन अल फिलिपीन, अल फिलिपीन यानी फिलीपाइंस, अल फिलिपीन यानी फिलीपाइंस जो एक कंट्री है, अल फिलिपीन से वही मुराद है। अंत मिन अल फिलिपीन, क्या फिलीपीन से हो। मैं कहूँगा ला अना मिन अल हिंदी, मैं इंडिया से हूँ, अना मिन अल हिंदी। मन मिन चीनी, चाइना से कौन है। अगर हम लेसन में जाएंगे हम कहेंगे अम्मार मिन चीन, अम्मार चाइना से है। फिर कहते हैं मिन आइन हामिद, हामिद कहाँ से है। हुआ मिनल हिंदी, हामिद हिंद से है। फिर कहते हैं आइन ज़हाब अब्बास, अब्बास कहाँ गया। ज़हाब इलल मुदीरी, वो हेडमास्टर के पास गया। अज़हब अली इलल मुदीरी, क्या अली हेडमास्टर के पास गया, हम कहेंगे ला मा ज़हब इलल मुदीरी, या हम कहेंगे ज़हब ला ज़हब इलल मिरहाद, ही वेंट टू द टॉयलेट। फिर दूसरे एक्सरसाइज में कहते हैं इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिर कलिमात, पढ़ो और लिखो कलिमात के आखिरी हरूफ को हरकत देकर, वोकलाइज करने के साथ। कहते हैं अल गुरफा तु, हमने कहा था कि नाउन की नॉर्मल एंडिंग होती है गम्मा, अल गुरफतु, लेकिन जब इस पे हर्फ जार दाखिल होगा हम कहेंगे मिन अल गुरफती। मैंने अभी कहा था कि इस नून को इस्लाम के साथ मिलाने के लिए फिर ये फतह दिया जाता है। मिनल गुरफती, फ्रॉम द रूम। मिनल हम्मामी, फ्रॉम द बाथरूम। अल मिरहाब, वॉशरूम। इलल मिरहाब, टू द वॉशरूम। अल याबान, जापान। अल फिलिपीनो, अल याबानो, अल फिलिपीनो। मिनल हिंदी, फ्रॉम इंडिया। इला चीनी, टू चाइना। कहते इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। मिन आइना फातिमा, तो फातिमा कहाँ से है। हिया मिनल हिंद, शी इज़ फ्रॉम चाइना। देखिए इस सेंटेंस पे गौर करिए, मैंने अभी कहा था कि ये जो ज़मीर होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं अरबिक में, ये नाउन ही होता है, इसम ही होता है। और हमने कहा था कि जब इसम से सेंटेंस की शुरुआत होती है हम उसको क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया। हिया मिनल हिंद, देखिए ये है ना अब नाउन, ये इसम है, प्रोनाउन है, और इससे सेंटेंस की शुरुआत हुई है, हम इसको कहेंगे ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा है। मिनल हिंदी, मीन जो है ये हर्फ जर है। अल हिंद जो है ये इसका मजरूर इसम है, इसमुन मजरूर। हमने कहा था कि जब नाउन पे कसरा लगती है हम इसको कहते हैं कि वो मजरूर है, इसमुन मजरूर, मजरूर नाउन है। और ये दोनों मिलाकर जो है इसकी खबर बनते हैं। खबर जो होता है
मुब्तदा जो होता है, मुब्तदा हमेशा एक वर्ड होगा, वन वर्ड, एक नाउन होगा। ठीक है, एक नाउन होगा, चाहे फिर वो प्रोनाउन हो या सीधा नाउन हो, सिंपल नाउन हो, कोई और नाम, जगह, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, या कोई प्रोनाउन हो। लेकिन खबर जो है, खबर कभी वन वर्ड भी हो सकता है, खबर कभी पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, यानी सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस, और खबर कभी फ्रेज भी हो सकता है, यानी जुम सेंटेंस की तरह दिखने वाला कोई 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 तरकीब। जैसे मिनल हिंदी, इसे हम अरबिक में कहते हैं, अरबिक ग्रामर में शिबह जुमला, फिलहाल हमें वो याद रखने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल याद रखेंगे कि ज हर्फ जर प्लस इसम मजरूर, ये स्ट्रक्चर जो है ये भी खबर आ सकता है। क्योंकि हम हिया के मुतलिक क्या कह रहे हैं, हिया जो सब्जेक्ट है, मुब्तदा है, हिया के मुतलिक हम कह रहे हैं इज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इज फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, ये हम खबर दे रहे हैं किसके मुतलिक, हिया के मुतलिक। ठीक है, कहते खरजल मुदर्रिसु, द टीचर लेफ्ट, मिनल फसली, फ्रॉम द क्लास, व एंड ज़हब, ही वेंट, इलल मुदीरी, टू द हेडमास्टर। ज़हब ताजुर इलल दुकान, अब खरज जो है ये वर्ब है, इसलिए ये जुमला फेलिया है। ज़हब से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये भी जुमला फेलिया है। खरज जैसे ये सेंटेंस भी स्टार्ट हुआ है, ये भी जुमला फेलिया है। ज़हब ताजुर इलल दुकान, अद-दुकान यानी शॉप, द मर्चेंट वेंट टू द शॉप। अब हम यहाँ पर ही मर्चेंट वेंट टू द शॉप नहीं कहेंगे, ही की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि ज़हाबा के बाद सब्जेक्ट जिक्र किया गया है। फिर कहते हैं खरज हामिदुन, हामिद लेफ्ट, मिनल गुरफती, फ्रॉम द रूम, व एंड ज़हबा वेंट इलल हम्मामी, टू द बाथरूम। फिर कहते हैं मन खरज मिनल फसल, हु लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। हु लेफ्ट, ये हमें खाली पढ़ने, इसका जवाब नहीं देते देना है। हु लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। फिर एक और सेंटेंस लाते, खरज तालिबु, द स्टूडेंट लेफ्ट, मिन अल मदरसती, फ्रॉम द स्कूल, अल मदरसा स्कूल, व एंड ज़हब, एंड ही वेंट, इला सूक, टू द मार्केट। अस्सूक कहते हैं मार्केट को, असल में था सूकुन, फिर अलिफ लाम लगने की वजह से बन गया अस्सूकु, इला हर्फ जर लग गया, बन गया इला सूकी, क्योंकि इला हर्फ जर है, बन गया अस्सूक, असल में था अस्सूकु, बन गया इला सूकी। कहते खदीजा तो मीना सीन, खदीजा इज फ्रॉम चाइना, व खालिद एंड खालिद मिनल याबान इज फ्रॉम जापान। अगर हम इसकी भी तरकीब नहवी करेंगे, हम कहेंगे खदीजा जो है ये मुब्तदा है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, जुमला इसमिया है, और जुमला इसमें मुब्तदा और खबर होता है। खदीजा मुब्तदा है, और ये मिन सीन, ये दोनों मिलाकर, मिन हर्फ जर, अस्सीन इसम मजरूर, ये दोनों मिलाकर जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी खबर है। इसी तरह खालिदुन, ये भी मुब्तदा है, मिनल याबानी, ये दोनों मिलाकर इसकी खबर है। फिर चौथे एक्सरसाइज में कहते हैं दा फिल फरागी फीमा यली हर्फ जर्रिन मुनासिबन, खाली जारी, जो दिए गई खाली जगह हैं उसमें रखो मुनासिब सूटेबल हर्फ जर। हरफ जर हमने अभी कितने देखे, चार टोटल, मिन, इला, फी, अला, ऑन, इन, टू, फ्रॉम। ठीक है, देखिए अला जो है, अला, ऑन, मिन, फ्रॉम, इला, टू, फी, इन। ठीक है, दे अल किताब, फिर लास्ट में अल मकतबी, द बुक, द टेबल। सीधी सी बात है, द बुक विल बी ऑन द टेबल। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे अल किताब अल मकतबी, द बुक इज ऑन द टेबल। अत्तालिबु अल फसल, तालिब इल्म क्लास, यानी क्लास में होगा। इन, हम कहेंगे फी। अत्तालिबु फिल फसल, तालिब इल्म क्लास में है। ज़हबा हामिदुन, देखिए ज़हबा है ना, हमने कहा था इससे पहले कि ज़हबा के साथ अक्सर इसके बाद हर्फ जर आता है इला, और खरज जो है इसके बाद हर्फ जर आता है अक्सर मिन, इसलिए कहा हम गए ज़हबा हामिदुन इलल जामिअति, द हामिद वेंट टू द जामिआ, यानी टू द यूनिवर्सिटी, अल जामिआ यूनिवर्सिटी।
खरज अल मुदीर मिनल मदरसती, the headmaster left from the school. ذهب محمد إلى الصين من اليابان. मोहम्मद गया चीन, कहाँ से? जापान से. सीधी सी बात है, कहीं से डेस्टिनेशन की स्टार्ट हुई होगी और कहीं पे डेस्टिनेशन खत्म हुई होगी. क्योंकि जहाबा पहले लिखा है इसलिए मोहम्मद सीन की तरफ गया होगा. जहाबा मोहम्मद इला सीन मिनल याबानी, फ्रॉम जापान. इस लेसन में जो नए वर्ड्स आए, अल कलिमातुल जदीदा, अल मदरसतु स्कूल को कहते हैं, अल फस्लु क्लासरूम को कहते हैं, अल हम्मामु बाथरूम को कहते हैं जहाँ पे नहाया जाता है, अल मिरहादु वॉशरूम को कहते हैं या टॉयलेट को कहते हैं जहाँ पे कज़ाए हाजत की जाती है, अल मतबखु किचन को कहते हैं, अल गुरफतु रूम को कहते हैं. अब हमें पता है कि अल अल ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है इन नाउन्स में. असल में क्या था? मदरसतुन, फसलुन, हम्मामुन, मिरहादुन, मतबखुन. लेकिन अल की वजह से इसमें क्या हो गई, ये अब एक प्रॉपर नाउन बन गया, डेफिनेट नाउन बन गया. इसमें द का मीनिंग आ गया और एक दम्मा वो हट गया, तनवीन हट गया, क्योंकि तनवीन अ का मीनिंग देता है, अल द का मीनिंग देता है. अ और द एक एट अ टाइम नहीं आ सकती. अल जामिअतु यूनिवर्सिटी को कहते हैं, अस्सूक मार्केट को कहते हैं. असल में था सू, सीन वाव पेश सुन, सू कुन, काफ दो पेश कुन, सूकुन, फिर बन गया अस्सूकु. अल याबानु जापान, अस्सीनु चाइना, अल हिंदू इंडिया, अल फिलिपीनो फिलिपाइंस, अल मुदीर हेडमास्टर, जहाबा जहाबा का मतलब हमने देखा ही वेंट, खराजा ही लेफ्ट. और इस लेसन में हमने देखिए ये कहते हैं फी, अला, मिन, इला, मिन हुरूफिल जर, कि ये जो चार पार्टिकल्स है ये हुरूफुल जर में से कुछ हुरूफ जर है. फी यानी इन, अला यानी ऑन, मिन यानी फ्रॉम, इला यानी टू. इसका साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन भी ख़त्म होता है. प्रोनाउंस के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम ज़मीर जो है इसके मुतलिक हम इंशाअल्लाह ताला अलग एक चार्ट देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में, सारे प्रोनाउंस का. उसमें हम डिटेल के साथ इन प्रोनाउंस के मुतलिक देखेंगे इंशाअल्लाह ताला. फिलहाल हमने जो प्रोनाउंस इस लेसन में देखे वो चार थे असल में, अंत, अना, हिया और हुआ. बाकी जो प्रोनाउंस है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला आगे देखेंगे. वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.